impairment of assets. So basically, impairment of assets has been governed by IAS 36. So what will happen is sometimes in the question or in the MCQs, na, they will ask you कि, according to IAS 16, property, plant and equipment, and they will give you a particular sum. So वो sum देंगे, and after that particular sum is done, they will at the end of the sum say कि impairment has taken place. So you have to solve the entire sum with regards to IAS 16, but the only part is impairment. You have to solve it by IAS 36 because no IAS ever overlaps each other. ठीक है ना? This is the main principle of FR and SBR कि किसी भी IAS ने एक दूसरे को overlap नहीं करना चाहिए. So how do we calculate the impairment first of all? In Canada, no? Word file खोल लेता हूँ. अरे हाँ. So for calculating impairment, mhm, what we do is we have to select the lowest of or the lower of carrying amount or recoverable amount. Sorry, and recoverable amount. Carrying amount and recoverable amount इन दोनों में से सबसे लोअर ऑफ वी हैव टू सिलेक्ट. बट अभी कैरिंग अमाउंट तो अपने को दिया हुआ. कैरिंग अमाउंट इज द अमाउंट दैट वी हैव शोन इन आवर बुक, इन आवर टैली, इन आवर सैप, or in any of the platforms that we are using for our accounting. Whatever is the carrying amount, that is our the book value. Abhi, the only thing we have to calculate is our recoverable amount. Recoverable amount in more mature terms is called as market value. कि मार्केट में फिलहाल उसका वैल्यू क्या चल रहा है. So what we have to select the higher of first and second. Higher of पहला क्या है? Fair value less cost to sell. ठीक है, this one एक मिनट. Fair value, higher of fair value less cost to sell. And I think next one was है ना, फिर दिया होगा value in use. हाँ, value Value in in use. use. कि let's suppose कि now what is value in use? Let's say you have to select the the recoverable amount in terms of 5 years. कि अगले 5 साल यूज करूंगा मैं, तो मेरे ये एसेट मुझे ये रिटर्न देगा 30,000 का. बट अगर मैं आज के दिन उस एसेट को बेचने गया, तो माय एसेट विल बी सोल्ड फॉर 35,000 लेस कॉस्ट टू सेल. कि मेरे को न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी पड़ी बेचने के लिए, या फिर मेरे को ब्रोकर को पैसे देने पड़े बेचने के लिए. तो 35,000 minus 2,000, whatever my cost to sell is, that. So that will be 33,000. So what is the higher value? Value in use, sorry, value in use is 30,000 and fair value less cost to sell is 33,000. So higher of 33,000. Next, lower of carrying amount. Let's suppose कि मेरे बुक्स में मतलब वो द वैल्यू वाज 37,000. ठीक है, अब अगर मेरे बुक्स में मैंने वैल्यू दिखाया है 37,000, लेकिन मार्केट में उसका वैल्यू चल रहा है 33,000, तो दैट मीन्स मैंने अपने बुक्स में उस चीज को ओवर वैल्यू किया हुआ है. बराबर है. नाउ why do we do impairment at the first place? इम्पेयरमेंट हम इसीलिए करते हैं बिकॉज लेट सपोज कि कोई इन्फ्लेशन आ गया या कोई मार्केट ट्रेंड आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट की एक वेव आ गई पूरे कंट्री में, बिकॉज ऑफ विच एक पर्टिकुलर मशीनरी की वैल्यू फ्रॉम say 40,000 suddenly dropped to 30,000. Now this sudden drop in the industry or the sudden drop in the market made our recoverable value to fluctuate. Now our recoverable value keeps on fluctuating
up and down, up and down. Our carrying value usually goes down because अपन मशीनरी को ये depreciate करते रहते हैं ना, unless we do ये revaluation test वगैरह. So because of that, our carrying value always goes down. So if our carrying value is always going down only, and the market value is just fluctuating, if the market value drops suddenly and our carrying value is still, let's say, at 30,000 and the market value has dropped to 25,000, तो मार्केट में भाव चल रहा है 25,000 का, लेकिन हमने हमारी बुक पे दिखाया 30,000 का. नाउ वी आर नॉट लाइक ये huge company, or we don't determine the trend of the market, right? So as मतलब अपना contribution will not ये reflect or ये reflect anything huge in the market. So that's why we have to follow the market. So whenever we are following the market, we should always make sure that our carrying value is always equal to or lower than the market value. ठीक है. काही क्वेश्चन आहेत का दोघांचे? Any? हाँ, मला है कि हम्म, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वी कैन अंडरस्टैंड. हम्म, मार्केट में इतना इतना उसका वैल्यू है, लेकिन उसको बेचने के लिए आई नीड टू हम्म, मेक सम एडिशनल कॉस्ट. हम्म, वैल्यू इन यूज का हम लोग को बोला था कि फ्यूचर कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज देख के हम्म, हम्म. प्रेजेंट बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर. तो ये कैलकुलेट कैसे करना है, जस्ट शो मी So, वंस. see, you guys have not studied FM, right? So that's why this नहीं. question is arising. हाँ, मैं मतलब मैं वही बता रहा हूँ that you guys have not studied FM, हाँ. right? So as you guys have not studied हाँ. FM, this question will arise. It's quite common. Let's say 5 साल है अपने पास, ठीक है? And वो मशीनरी अगर तुम अभी बेचने के लिए जाओगे तुमको मिलेगा 50,000 रुपए. और अभी उसी मशीनरी को अगर तुम लोग वैल्यू इन यूज देखने के लिए जाओगे, तो फॉर द नेक्स्ट 5 years you are able to predict कि this machinery will be giving you 20,000, और लेट्स से सिर्फ 15,000 पकड़ लेते हैं to make this game even more closer. 15,000, 15,000, 15,000. अभी now अब मैं थोड़ा और डीप जा सकता हूँ जस्ट फॉर योर ये नॉलेज टेक कि वाई ओनली 5 years. So we have to only select 5, 3, 4 years because we have to only select those many years until which we can predict a fair value कि मेरे को 15,000 अगले 5 साल तक मिल सकता है. छठे साल में शायद 14,000, शायद 20,000, या फिर शायद इवन ये 5,000. तो जहाँ पे शायद आ गया ना, तो यू जस्ट डोंट सिलेक्ट ये दैट ईयर. जहाँ जहां तक वी आर श्योर ना कि इतना अमाउंट तो मेरे को मिलेगा ही इस मशीनरी से, वी ओनली सिलेक्ट दैट मच ईयर. नाउ आई एम टेकिंग दिस 5 years जस्ट एज फॉर द ये रैंडम सेक. नाउ लेट्स से इन्फ्लेशन रेट ओवर द ईयर इज 7%, ठीक है ना? व्हाट इज दिस? दिस इज द इन्फ्लेशन रेट. नाउ एफएम नहीं पढ़ा है तो इसलिए ना एफएम के पेपर के टाइम पे ना हमेशा ये देखो, दिस इज माय सेट. तो यहाँ पे मैं एफएम में जाऊंगा. आई विल ओपन एफएम के टेक्स्ट बुक. नाउ व्हाई? बिकॉज वहाँ पे ना एक डिस्काउंटिंग टेबल है. नाउ दैट डिस्काउंटिंग टेबल विल हेल्प मी डिटरमाइन व्हाट इज माय वैल्यू इन यूज. इफ यू गाइस हैव स्टडीड 12th या ऐसा ना, तो वहाँ पे ये हमेशा आता था वो डिस्काउंट करने के लिए टेबल. कहाँ गया? ये रहा एन्युटी टेबल एंड द प्रेजेंट वैल्यू टेबल. डिस्काउंटिंग टेबल मतलब प्रेजेंट वैल्यू. बेसिकली ये जो मैं मेरे को 15,000 4-5 साल बाद मिलने वाला है, दैट इज माई फ्यूचर वैल्यू. अभी इस फ्यूचर वैल्यू को मेरे को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा. नाउ बिकॉज मुझे इस चीज को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है, अब मैंने यहाँ पे यूज किया फॉर्मूला 7% का. तो आई विल यूज वॉट एवर इट हैज बीन गिवन हियर. 7% का 0.935, 0.935, 0.873, या फिर मैं इसको कैलकुलेट भी कर सकता हूँ कि लाइक कैसे रहता है इसमें, एक मिनट ना. 1 डिवाइड बाय ब्रैकेट ओपन 1.07 इंटू 1.07 इंटू 1.07. So I'll get 0.8160. I'm getting here 0.816. So yes, I can calculate also, or I can write it from the ये sheet also.
0.816, 0.763, अरे, या फिर 0.713. So that's how you will get your value in use. Basically, you will multiply it with the discounting factor. सम किया तो 61,500. So which one is bigger? ऐसा. So this is how you determine value in use. However, इतना कॉम्प्लेक्स वो लोग शायद नहीं देंगे एफआर के पेपर में. They will they will directly give you the value in use. Or even if they give you, they will give you the discounting factor. So you just have to apply the formula. शीट तो तुम लोग को नहीं मिलेगी. ये वो डिस्काउंटिंग की शीट वो हाँ, तो 100% नहीं मिलेगी. डिस्काउंटिंग का दिया है, मतलब जितने क्वेश्चन मैंने देखे हैं हाँ, उसमें वो डिस्काउंटिंग खुद पता है से दिया हुआ है। कब आएगा? लीज जब सर स्टार्ट करेंगे ना, तब जाके वो आएगा डिस्काउंटिंग का. तब तुम लोग को डिस्काउंट अनबाउंड करना पड़ेगा. वो सब आएगा. लीजेस नहीं दे रहा। तो दिस इज हाउ यू डिटरमाइन वैल्यू इन यूज. ठीक है. नेहा, हाँ हाँ। ठीक है ना? ठीक है. मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, fair value less cost to sell. Measurement may be by the way of bidding, sale agreement, current market, है ना? Bid price 15,000 just prediction. हाँ 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 हाँ. 15,000 is just ये prediction में, हाँ, मतलब it's just ये random ये number I took similar. The current market price less cost of disposal. हाँ, यही ठीक है. Measurement of value in use. See, value in use it is determined by estimating future cash inflows. जो पैसा मेरे को फ्यूचर में मिलेगा उसका मैं अभी से डिटरमाइन कर रहा हूँ, ऐसा. To be derived from the use of an asset and its ultimate uh, disposal, and applying a suitable discount rate to these cash flows. Cash flows relating to financing activities or income taxes should not be included. ठीक है. तभी why? First of all, why cash flows from financing activities and income taxes should not be included? The answer is कि these are governed by different IAS and IAS standards. ये I think IFRS 9 से governed है financing activities, which is IFRS 9 financial instruments, and this one is income taxes. Income taxes के लिए कौन सा है? I think 21 था शायद, IAS 21 income taxes, if I'm not wrong. So see if you can calculate this. Carrying amount 100 की. ठीक है. अभी देखो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. कि मेरे को इतना रियलाइज होगा. नेट नेट मतलब माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल या कॉस्ट टू सेल, ऐसा. तो भी वैल्यू इन यूज और ये वैल्यू इन यूज और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इनमें से हायर कौन सा है? आंसर इज 120. अभी 100 और 120 में से लोअर कौन सा है? 100. सो माई इम्पेयरमेंट, सो माई वैल्यू विल बी 100, एंड जो इम्पेयरमेंट होगा वो होगा 20 का, ऐसा. व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट पूछा है, सो रिकवरेबल अमाउंट विल बी 120. ठीक है. यस यस। आगे इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट. हाँ, अभी इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट होते हैं. इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर, जैसे मैंने बोला कि मार्केट डाउनटर्न आ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए या ये घट गए, फिर किसी नहीं, तुम्हारी इंडस्ट्री में नहीं, लेकिन तुम्हारी फैक्ट्री में फ्लड आ गया, थेफ्ट हो गया. और क्या हो सकता है? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन तो बोल दिया मैंने. मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट हैज ये डिक्लाइन मोर देन एक्सपेक्टेड. चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, हाँ, ये सबसे मेन है. चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, इसके लिए बिकॉज नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, राइट? तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, दैट विल बी रिडंडेंट, और वो थोड़ी पुरानी हो जाएगी, जिसकी वजह से अभी जो मार्केट है, दैट विल फेवर द न्यू टेक्नोलॉजी मोर. So your technology that you are using, its value will decrease in the market, but you would have not decreased that value in your book. So in your books, it is overvalued, and the market उसकी इज्जत थोड़ी सी कम हो गई है. So that's the indicator of impairment. ठीक है ना?
तो इनको बस इन्होंने दो केसेस में से मतलब बाइफरकेट किया हुआ है, इंटरनल और एक्सटर्नल। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इम्पेयरमेंट, इनमें जो बाइफरकेशन है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ एमसीक्यूज। तो ये आ सकता है। थियोरी में। हाँ, नहीं नहीं, इम्पेयरमेंट, हाँ मतलब वो एमसीक्यूज में। हाँ, एमसीक्यू थियोरी एनुअल क्वेश्चन। इम्पेयरमेंट रिव्यूज, हाँ अभी एनुअल इम्पेयरमेंट रिव्यूज। तो देर इज नो। इसमें ना एक अ, एक हम्म। सेकेंड ना साइड, ये इंटरनल सोर्सेस में जो इन लोगों ने बोला है एविडेंस ऑफ ऑब्सोलीसेंस और डैमेज टू द एसेट, हाँ हाँ तो ये मतलब अभी पकड़ के चल डैमेज हो गया एसेट तो उसका वैल्यू कम हुआ, इसके लिए इम्पेयर हुआ है, ऐसा ना? हाँ हाँ। तो ऑब्सोलीन्स मतलब खराब हो जाना, या फिर स्टॉक को ज्यादा देर तक रखना, खराब हो जाना, इट इज एज गुड एज अच्छा। खराब हो जाना। ऑब्सोलीन्स और डैमेज हाँ। मतलब जैसे मैंने बोला ना कि तो ये तुम्हारी फैक्ट्री में फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, थेफ्ट हो गया, हम्म। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज डिक्रीज, राइट? ऐसा। अभी ओके। क्या इम्पेयरमेंट हर साल करना चाहिए? द आंसर इज नो। हर साल इम्पेयरमेंट करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं इधर ऐसे बताता हूँ, एक मिनट, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इम्पेयरमेंट हर साल करने की जरूरत नहीं है। इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स हर साल ये देखने ही चाहिए। इंडिकेटर्स देखना और इम्पेयरमेंट करने में बहुत फर्क है। इंडिकेटर्स देखना तो यू आर जस्ट वॉचिंग द इंडिकेटर्स की वेदर देयर आर एनी साइंस दैट वी शुड बी डूइंग इम्पेयरमेंट रिव्यू, ऐसा। So to watch the indicators every year is important and it is required. हर साल इम्पेयरमेंट नहीं किया जाता, हर साल इम्पेयरमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका हर साल इम्पेयरमेंट किया जाता है। देयर ओनली सम एसेट्स that needs to be impaired every single year. Those include intangible assets which whose value you cannot determine. Impairment मतलब whose useful life you cannot determine, sorry। इंटेंजिबल एसेट जैसे पेटेंट की तो ठीक है, वो उसकी वैल्यू वी कैन डिटरमाइन। गुडविल की वैल्यू वी कैनॉट डिटरमाइन। और कोई अच्छा आंसर है इसका? हम्म, हाँ, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट्स हो गया, या फिर और कौन सा हो सकता है, कोई भी ट्रेडमार्क हो गया। तो बिकॉज इन सब चीजों की कोई यूजफुल लाइफ डिटरमाइन नहीं है, जिन इंटेंजिबल एसेट्स की कोई भी यूजफुल लाइफ ये डिटरमाइन नहीं होती है, उनका इम्पेयरमेंट हर साल किया ही जाता है। फिर होता है गुडविल। गुडविल जो हम बिजनेस कॉम्बिनेशन पे एक्वायर करते हैं, हम उसी गुडविल को यूजुअली शो करते हैं एक हायर वैल्यू पे, जब हमने किसी बिजनेस कॉम्बिनेशन से उसको एक्वायर किया होगा। ठीक है। उनका उनका इम्पेयरमेंट हर साल, उनका इम्पेयरमेंट रिव्यू हर साल किया जाता है। और लास्ट है एन इंटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल ठीक है। In SBR, these are the only two things that actually come. This is not the thing that comes because ये नहीं आता। The intangible asset not yet available for use. If you just listen or read to this sentence is exactly the same as the second sentence. An intangible asset with an indefinite useful life is the same as an intangible asset not yet available for use. You still cannot determine the useful life, no, ऐसा। ठीक है। Recognition and measurement of impairment, where there is an indication of impairment, and impairment review should be carried out। हाँ ये ठीक है। Required must be calculated as a to impairment loss immediately recognize of profit और हाँ, impairment loss जो है वो हमेशा अपने पीएनएल में दिखाया जाता है, ठीक है, ऑलवेज। लेकिन समझो, इम्पेयरमेंट लॉस इज ऑलवेज शोन ऑन द पीएनएल। लेकिन लेट सपोज कि कोई मशीनरी था, उस मशीनरी का मैंने पिछले साल ही रिवैल्यूएशन सरप्लस दिखाया हुआ है, इट इज इन माई ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। या मैंने समझो इसी साल मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस दिखाया हुआ था ईयर के बिगिनिंग में। ईयर एंडिंग तक मेरे को पता चला कि उस रिवैल्यूएशन सरप्लस का अभी मेरे को इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा उस मशीनरी का, क्योंकि मैंने मशीनरी को ओवर वैल्यू किया हुआ था। तो बिकॉज तुम्हारा रिवैल्यूएशन सरप्लस तुम्हारे ओसीआई में था, बिफोर पुटिंग दैट impairment loss in P&L, you will set off that same machinery's impairment loss within the OCI,
एंड देन अगर कुछ इम्पेयरमेंट बचा हुआ होगा तो उसको पीएनएल में शिफ्ट करना है। नाउ लेट्स से कि तुमने रिवैल्यूएशन सरप्लस किया मशीनरी का और तुम्हें इम्पेयरमेंट करना है फर्नीचर का, तो फिर ठीक है, तो फिर फर्नीचर का इम्पेयरमेंट पीएनएल में दिखा दो। लेकिन अगर सेम मशीनरी का तुमने रिवैल्यूएशन सरप्लस किया हुआ था और अगर सेम मशीनरी का तुमको क्या बोलते हैं इम्पेयरमेंट करना है, तो यू शुड फर्स्ट सेट इट ऑफ इन दी ओसीआई। और अगर समझो रिवैल्यूएशन सरप्लस कुछ बच गया तो वो तो ओसीआई में ही रहेगा। लेकिन अगर इम्पेयरमेंट कुछ बच गया तो उसको पीएनएल में डालना है। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे? नहीं, ऑल क्लियर। ओके। In this case, the impairment will, ये देखो, the only exception to this is if the impairment reverses a previous gain taken to the revaluation surplus. In this case, the impairment will be taken first to the revaluation surplus and so disclosed as the other comprehensive income until revaluation surplus is fully exhausted. Then any access is taken to the P&L. ठीक है ना? Same shit. फिर TYU1. Recoverable amount. An entity owns a car that was involved in an accident at the year end. It is barely usable, so value in use is estimated at 1000. However, the car is a classic and there is a demand for the parts. This results in the fair value less cost to sell of 3000. The opening carrying amount was 8000 and the car was estimated to have a life of 8 years from the start of the year. Hmm. Entity owns the car involved in the right to a value equals to value in use. देखो value in use was estimated to be 1000. ठीक है। However, car was considered to be a classic, तो उसको हम लोग बेच सकते थे 3000 का। Fair value less cost to sell was 3000. So what is higher? तो इसमें से 3000 लेंगे क्योंकि Higher है। दोनों The में opening से carrying amount was ग्रेटर। बराबर। The opening carrying amount of the car was estimated to be, sorry, the opening carrying amount was 8000, estimated to have a life of 8 years. तो 8000, और देखो हमारा एक्सीडेंट हुआ कब था? ईयर एंड पे। तो ये जो हमारा रिकवरेबल अमाउंट है 3000 और 1000, मतलब इन दोनों का जो वैल्यू इन यूज और ये सब दिया हुआ है ना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट में, ये अपने को ईयर एंड का दिया हुआ है। तो अपन सबसे पहले इस 8000 को ईयर एंड पे लेके जाएंगे। जब अपन इसको एक ईयर एंड पे लेके जाएंगे डेप्रिसिएशन। तो उसका वैल्यू होगा हाँ बराबर, तो डेप्रिसिएशन लग के उसका वैल्यू होगा 7000। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज 3000 विच इज हायर, राइट? So 7000 carrying amount, 3000 my fair value less cost to sell, my impairment will be 4000 if I'm not wrong. ठीक है? वही वही आंसर है क्या? हाँ, impairment 4000, ये देखो। हाँ, ठीक है, 4000। impairment 4000। PYU2. An entity owns a property that was revalued to 5 lakh on 31st of March 2013. With a revaluation gain of 2 lakhs being recognized in the other comprehensive income and recorded in the revaluation surplus. At 31st of March 2015, the property had a carrying amount of 4,60,000, but the recoverable amount of the property was estimated at only 2 lakhs. तो हमारा इम्पेयरमेंट जो हमको करना पड़ेगा वो हमको करना पड़ेगा 2,60,000 का, बराबर है? हाँ, 2,60,000 का उसमें अपने को उन्होंने रिवैल्यूएशन गेन दे दी। बराबर। तो सबसे पहले ओसीआई में 2 लाख सेट ऑफ हो जाएगा और जो 60,000 है वो जाएगा पीएनएल में। रिमेनिंग 60,000 विल बी चार्ज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है ना? फिर आता है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। अभी कई बार अपने को क्या होता है, वी फर्स्ट बुक एन इम्पेयर, अभी ये चीज एफआर में नहीं आएगी लेकिन फिर भी इन्होंने इस चीज ने इसको यहाँ पे कवर किया हुआ है। बेसिकली इसमें क्या रहता है, इम्पेयरमेंट हो जाता है, वी फर्स्ट इनकर एन इम्पेयरमेंट एंड आफ्टर से 3 months वी रियलाइज कि ओ एक्चुअली इम्पेयरमेंट कुछ था ही नहीं, वी वर रॉन्ग।
या अभी मार्केट ज्यादा बेटर हो गया है जो प्रीवियसली था, तो नाउ वी हैव टू ये रिवर्स द इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है ना। तो see, now what happens in the problem in reversing an impairment loss is कुछ नहीं है एक्चुअली, तुमको पीएनएल फिर से क्रेडिट करना है, तुम लोग को एसेट का वैल्यू बढ़ाना है, इट्स ओके, इट्स सेम। द ओनली प्रॉब्लम दैट कम्स इन इम्पेयरमेंट लॉस विच आई फील, मेरे को बहुत मतलब मुश्किल ये जाता था when there was reversal of impairment loss, is that whenever there is a reversal of impairment loss, what you have to do is you have to estimate what the assets value would have been, एंड जो डेप्रिसिएशन अपन ने पहले चार्ज नहीं किया था ना, अभी वो अपने को यहाँ पे चार्ज करना है, ऐसा है। तो द कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉसेस इज बेस्ड ऑन द प्रिडिक्शंस ऑफ व्हाट मे हैपन इन द फ्यूचर। Sometimes actual events turn out to be better than the predicted. If this happens, the recoverable amount is recalculated and the previous write down is reversed. So, impaired assets should be reviewed at each reporting day to see whether there are any indication of impairment has reversed. ये कुछ नहीं, ये impaired asset मतलब अगर हमने ईयर के एंडिंग में, अगर हमने ईयर के बीच में कोई इम्पेयरमेंट किया होगा तो अपने को खाली ईयर एंड पे चेक करना है कि हम लोग सही तो थे ना इम्पेयरमेंट करने के लिए, वैसा ही। A reversal of an impairment loss is recognized immediately as income in profit or loss. जो अपन ने पीएनएल में डेबिट किया था, अभी अपने को पीएनएल को क्रेडिट करना है, दैट्स इट। इफ द ओरिजिनल इम्पेयरमेंट वाज चार्ज्ड अगेंस्ट द रिवैल्यूएशन सरप्लस, if the original impairment was charged against the revaluation surplus, it is recognized as other comprehensive income and credited to revaluation surplus. अगेन द सेम थिंग, पहले अपन ने क्या किया था, रिवैल्यूएशन सरप्लस को अपन ने ओसीआई में दिखाया था, फिर हमने इम्पेयरमेंट पहले इसको सेट ऑफ किया, बराबर है। लेट से हमने मशीनरी ए को रिवैल्यूएशन सरप्लस दिखाया, ईयर के बीच में हमने उसको इम्पेयरमेंट चार्ज किया, अभी ईयर एंडिंग पे अपने को लगा कि नहीं यार वी वर एक्चुअली रॉन्ग, हमने हमने गलती कर दी ईयर के बीच में, एक्चुअली इम्पेयरमेंट चार्ज करने की कोई कोई मतलब जरूरत ही नहीं थी। तो एट द ईयर एंड you have to again वो reverse the impairment. So in order to ये reverse the impairment we have to do OCI again credit, ऐसा। तो OCI में अपन फिर से एक बार प्लस करेंगे। The reversal must not take the value of the asset above its depreciated historical cost. हाँ ये वाला important part है। See, as I said, in ये reversal of impairment, that the depreciation is the only the huge blunder thing. लेट्स से कि 3 लाख का हमारा वैल्यू था, हमें लगा कि हमारा रिकवरेबल अमाउंट इज ओनली 2,60,000, ठीक है। 3 लाख का हमारा कैरिंग अमाउंट है, 2,60,000 का हमारा रिकवरेबल अमाउंट है, हमने इम्पेयरमेंट चार्ज किया 40,000 का। एक बार हमने इम्पेयरमेंट 40,000 का चार्ज किया, जब उसका रिवर्सल होगा, इन इन दैट रिवर्सल वी कैन नॉट से कि द रिवर्सल इज ऑफ 75,000 और इवन 50,000 और इवन 45,000। the whatever the reversal is, that cannot exceed your previous impairment amount, समझा। the reversal of impairment में net effect should be zero, max to max। मतलब अगर कैरिंग वैल्यू 3 लाख था तो उसका अब अभी कैरिंग वैल्यू 3,20,000 नहीं बन सकता। द कैरिंग वैल्यू शुड बी 3 लाख ओनली, मैक्स, मैक्स, ठीक है ना। द depreciation that would have been charged in the meantime must be taken into account। अभी एक्सेल में दिखा रहा हूँ मैं, एक्सेल में इट वुड बी बेटर ना। नया डेट्स देना कुछ से, बट First Jan. ओके, 1st of Jan 25, Mm. First, 5th of May. 5th of May 25, last Last November. 1st of 10th November, November or something. okay, Yeah, 10th of fine, fine. November 25. So these are the three dates, okay, no. Now let's say the asset value was 3 lakh, recoverable amount was 2,60,000, carrying amount, recoverable amount। So what we did was, this was our happy go lucky day, यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था।
3 लाख पे, ठीक है ना। ऑन दिस डे एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, सडनली व्हाट हैपेंड वाज, अपना यहाँ पे 5th of May 25 को वी सॉर्ट ऑफ डूइंग एन इम्पेयरमेंट। नाउ सबसे पहले अपने को ये 4 महीने का इम्पेयरमेंट चार्ज करना पड़ेगा। लेट्स से दिस हैड अ ईयर ऑफ 15 ईयर, ठीक है। इसके और 15 साल बाकी थे, इस एसेट के 15 साल बाकी थे। तो द डेप्रिसिएशन वुड बी 3 लाख डिवाइड बाय 15। ने म्यूट करशील एक मिनट, सॉरी, डिवाइड बाय 15 इंटू what is the period, Jan, Feb, March, April, 4 months. So 3 lakhs divided by 15 into 4 by 12. तो एक मिनट, इंटू 4 by 12, ठीक है ना। तो इतने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, मैं बैड इधर लिख देता हूँ। डेप्रिसिएशन, so what will be my carrying amount at this date? It would be 3 lakhs minus this amount. So my carrying amount was 2 lakh 93, जो भी, ठीक है ना। अभी इस डेट पे इम्पेयरमेंट कितने का हुआ? इम्पेयरमेंट जो हुआ, इम्पेयरमेंट हुआ कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट 33,000 का। 33,000 का मेरा इम्पेयरमेंट हो गया, ठीक है ना। ईयर के अभी लेट से 10th of November में नहीं लेता, मैं लेता हूँ 31st of ये दिसंबर, ये 15 या 25, फॉर माई बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी इसके बाद 8 महीने हो गए, बराबर है। अभी जो भी मैंने इन 8 महीनों में डेप्रिसिएशन लगाया रहेगा, वो डेप्रिसिएशन मैंने 2 लाख 60 पे लगाया रहेगा, बिकॉज 2 लाख 60 बिकेम माई न्यू कैरिंग अमाउंट। इम्पेयरमेंट के बाद क्या होता है, आई गेट अ न्यू कैरिंग अमाउंट ना। तो आफ्टर इम्पेयरमेंट माई न्यू कैरिंग अमाउंट टर्न आउट टू बी 2,60,000, विच एवर वन इज द लोअर। हाँ, वो है ना कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट में से विच एवर इज लोअर इज योर न्यू अमाउंट, and whatever the difference is, that is the impairment loss. So my new carrying amount became 2,60,000, ठीक है। So now what will be my depreciation? My depreciation would be on 2,60,000 only. 2,60,000 into, sorry, into नहीं, divide by 15 years into 8 by 12, तो 11,555 का मेरा depreciation आया। अभी मैं इस डेट पे जब पहुंचा तो मेरा ये वाला जो कैरिंग अमाउंट था, न्यू कैरिंग अमाउंट, माई न्यू कैरिंग अमाउंट टर्न आउट टू बी 2,48,444, जो भी, ठीक है ना। लेकिन जब मैं ईयर एंड पे पहुंचा, मेरे को रियलाइज हुआ कि शिट यार, मैंने इम्पेयरमेंट करके गलती कर दी। आई हैव टू डू रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट नाउ। नाउ व्हेन आई हैव टू डू रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, मैंने कुछ नहीं, मैंने वो वैल्यू को वैसे का वैसा ऐड बैक किया। अभी हाँ, अभी वो भी एक है कि मतलब ये रिवर्सल कितने टाइम का था। अभी मैंने ये रिवर्सल पूरे 33,000 का किया, या ये रिवर्सल जो है मैंने सिर्फ 20,000 का किया। अब लेट से मैंने ये रिवर्सल सिर्फ 20,000 का किया। अब मैंने रिवर्सल सिर्फ 20,000 का किया ना, ठीक है। रिवर्सल मैंने 20,000 का किया, लेकिन मैंने अगर रिवर्सल 20,000 का किया है मेरे ईयर एंड पे, तो यानी कि मैंने 5th of May को जब एक्चुअल में इम्पेयरमेंट चार्ज किया था, मैंने 20,000 ज्यादा चार्ज किया था। क्योंकि मैंने मेरे ईयर एंड पे मैंने मेरी गलती को सुधारी ना, कि इट वाज माय मिस्टेक दैट आई डिड द इम्पेयरमेंट रॉन्ग। So as it was my mistake that I did the impairment wrong, I have to calculate what would be my depreciation if this value was also included. So my depreciation would be 20,000 divided by 15 into 8 by 12, which would be 888, जो भी। So this is my total depreciation for the year, ठीक है। और इन्होंने इसी चीज को वो टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा हुआ है, इन्होंने इसी चीज को टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि 2,60,000 का था, 2,60,000 प्लस 20,000, 2,80,000 बन गया। 2,80,000 को डिवाइड बाय 15, 15 इंटू 8/12, फिर भी आई एम गेटिंग 1,244। नाउ व्हाट इज दिस 1,244? दिस इज द न्यू कैरिंग अमाउंट कार्ड का डेप्रिसिएशन। ये देखो, 1,244, 1,244,
हाँ यहाँ पे रिवर्सल ऑन इम्पेरिमेंट 20,000 है ना, ये कैसे किया वापस मेरे को बताओ। हाँ, एक मिनट। सिमरन, वो क्लियर हुआ डाउट? I just use the word new carrying amount, but it is a carrying amount after impairment. झालं? ओके ओके चालेल. हा हा. चालेल, ओके. हाँ. नेहा, सॉरी, हाँ, 20,000 ना. हाँ एक्चुअली बहुत सारे फिगर्स यहाँ पे आ गए और प्रॉब्लम है कि वो थोड़े पॉइंट में चले गए हैं ना. तो इसकी वजह से शायद शायद थोड़ा स्लो समझ में आएगा. बट क्या हुआ है बेसिकली, यहाँ पे लेट से 33,000 नहीं था, लेट से यहाँ पे 30,000 था. ठीक है. यहाँ पे लेट से 30,000 था. 2,90,000 was the carrying amount. Recoverable amount was 2,60,000. The impairment took place of 30,000 of 30,000. Impairment 30,000 का हो गया. Now your new carrying amount or your carrying amount after impairment is 2,60,000. नाउ जब अपन ईयर एंड पे थे, व्हेन वी वर एट द ईयर एंड, वी रियलाइज कि अरे एक्चुअली वी हमने गलती से ये मतलब 20,000 को भी इम्पेयर कर दिया. ये ये वाला 20,000 को इम्पेयर करने की जरूरत नहीं थी. तो अगर इस 20,000 को इम्पेयर करने की जरूरत नहीं थी, तो इस 20,000 पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेप्रीसिएशन कितना चार्ज होता, अगर हमने इसको माइनस नहीं किया होता तो वो अपने को अभी सिर्फ चार्ज करना है. तो मैंने यहाँ पे सेपरेट सेपरेट कैलकुलेशन किया है कि 2,60,000 का 15 साल के लिए 8 8 महीना, और 20,000 का 15 साल के लिए 8 महीना. यहाँ पे इन्होंने सही सही टेक्स्ट में क्या बोला है कि 2,60,000 प्लस 20,000 2,80,000, इसका इम्पेयरमेंट कितना होगा, ऐसा. ठीक है. अच्छा, तो ये 12,444 जो आया है, हम्म. ये हम लोग रिवर्सल के टाइम इसका भी एंट्री अलग से करेंगे। डिप्रिसिएशन को ये हम लोग वापस से हाँ. चार्ज करेंगे। तो दिस 2,60,000 यू वुड हैव ऑलरेडी चार्ज, मतलब ये 11,555 का डेप्रिसिएशन तूने ऑलरेडी चार्ज किया हुआ होगा. बस ये 20,000 का जो एट एट हाँ, नाइन है उसका डेप्रिसिएशन तेरे को अलग से चार्ज करना है. अलग से। ओके, ठीक है. आगे ओके। बढ़ता हूँ. कुछ और डाउट है क्या? नहीं, नहीं, वो है। Okay. An impairment loss recognized for goodwill cannot be reversed in a subsequent period. The reason for the reason for this is that once purchased goodwill has become impaired, any subsequent increase in its recoverable amount is likely to be an increase in the internally generated goodwill rather than a reversal of impairment loss recognized for the original purchased goodwill. Internally generated goodwill cannot be recognized. So as we already know कि हम लोग इंटरनली जनरेटेड गुडविल को कभी शो करते ही नहीं है. बराबर है. तो अगर हम लोग इंटरनली जनरेटेड गुडविल को कभी शो करते ही नहीं है अपने बुक्स में, तो क्या करना रहता है अपने को? लेट्स से कि हमने गुडविल परचेज किया, दैट वी कैन शो. अगर हमने गुडविल को परचेज किया, उसका 1 साल बाद इम्पेयरमेंट हो गया, हमने उसको उसको किया भी रिकॉग्नाइज, अभी हम उसके रिवर्सल को रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज उसका जो भी रिवर्सल होगा वो हमारे वजह से होगा. दैट वुड बी बिकॉज ऑफ आवर इंटरनल एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. Because of our internal efforts in the organization, whatever increase or वो reversal in the goodwill is reversal in the impairment of goodwill is taken place, we cannot recognize that because that will be categorized as internally generated goodwill. ऐसा. इम्पेयरमेंट. ओके, हाँ. इम्पेयरमेंट के इम्पेयरमेंट रिवर्सल के इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? तो जो इम्पेयरमेंट के इंडिकेटर्स थे ना, उसी के पूरे उल्टे. ये देखो, इंक्रीज इन द एसेट्स मार्केट वैल्यू, फेवरेबल चेंजेस इन द मार्केट या टेक्नोलॉजी मार्केट, ऐसा. उसके बाद फेवरेबल चेंजेस इन द यूज ऑफ द एसेट, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इम्प्रूवमेंट इन एसेट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ऐसा सब. फिर आता है इलस्ट्रेशन टू. नाउ इफ यू सी इलस्ट्रेशन टू, यहाँ पे उन्होंने मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा.
देखो, बॉक्सर परचेज 1 जनवरी को 30,000 का एक एसेट, ठीक है ना। एट एट दैट डेट द एसेट एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years. Boxer does not revalue this type of an asset but account for it on the basis of depreciation, or sorry, depreciated historical cost. At 31st of December 2012, the asset was subject to an impairment review and had a recoverable amount of 16,000. अभी हमारा कैरिंग वैल्यू कितना था? 30,000 का, 1 जनवरी 2011 को। अब मेरा ईयर एंड है 31 December 2012, तो 2 साल एक बाद। एक सेकेंड। हाँ हाँ, बोल बोल। इसमें कैरिंग अमाउंट कैसे 30, वो कॉस्ट है ना, कॉस्ट 1 जन को उसका उतना था, राइट? फिर हम्म। उसको हम लोग 2 साल के लिए हम लोग डेप्रिसिएट करेंगे, फिर उसके बाद जो उसका कैरिंग अमाउंट आएगा हम्म। उसको ये 16,000 से कंपेयर करेंगे। राइट राइट राइट। So that 30,000 is actually your carrying amount on 1st of January 2011, I am saying. So your carrying amount on 1st of January 2011 in your books is 30,000. लेकिन उन्होंने जो तुमको रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है, वो तुमको रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है 31st of December 2012 का। तो यू हैव टू ब्रिंग योर कैरिंग अमाउंट फ्रॉम 1st of January 2011 टू 31st of December 2012, विच इज 2 years आफ्टर। तो तुमको पर साल का डेप्रिसिएशन पहले तो निकालना है। तो द एसेट हैड अ सेम। यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years। तो हर साल 3,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब अगर हर साल 3,000 का डेप्रिसिएशन ये लगेगा, एंड यू हैव टू गो फ्रॉम 1st of January 2011 टू 31st of December 2012, तो व्हाट यू विल डू इज 3,000 प्लस 3,000 6,000। तो वो 6,000 माइनस करोगे तुम लोग 30,000 में से। एट 31st of December 2012, you will get a carrying amount of 24,000, carrying amount of 24,000, recoverable amount of 16,000. Your recoverable amount is lower than what you have shown in the books. मतलब मार्केट में 16,000 का भाव चल रहा है और तुमने दिखाया है 24,000 का। तो तुमने ज्यादा दिखाया है। अगर हमने ज्यादा दिखाया है तो मतलब हमको 8,000 का इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, हमने 8,000 का इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज कर दिया। अभी देखो, एट 31st of December 2015, the circumstances which caused the original impairment to be recognized have reversed and are no longer applicable. ठीक है, ओरिजिनल इम्पेयरमेंट आर नाउ रिवर्स। अभी वो एप्लीकेबल ही नहीं है, मतलब हमने गलती कर दी, या या मार्केट में कोई इतना बड़ा ट्रेंड आ गया कि अभी हमारा वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसके वजह से हमारा जो रिकवरेबल अमाउंट है वो अभी हो गया 40,000 का। हमारा रिकवरेबल अमाउंट हो गया 40,000 का, लेकिन हमने इम्पेयरमेंट कितने का किया था? 8,000 का। 8। बराबर है, बराबर। 8,000 का। अभी देखो इन्होंने यहाँ पे इसको को कैसे शो किया है। द एसेट इज रिटन डाउन टू 16,000, वो सब ठीक है। इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 8,000 चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रिसिएशन चार्ज पर एनम फॉर फ्यूचर पीरियड्स वुड बी, देखो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज पर एनम अगले सालों तक कैसे किया था? 16,000 डिवाइड बाय 1/8, बराबर ना। अभी 2 साल 10 साल तक एसेट यूज हो सकता था, 2 साल 11 से 12 तक आने में लग गए। अब बचा कितना? 8 साल। बचे हैं 8 साल, एसेट का वैल्यू है 16,000, तो भी पर साल डेप्रिसिएशन लगेगा 2,000 का। ठीक है, तो ये लोग ने क्या बोला, यू हैव टू कम। मैं एक्सेल में खोल लेता हूँ अभी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया ना। तो एज एट 31st of December 2012, योर वैल्यू वॉज 16,000 फॉर 8 years, बराबर है। So when you will arrive at 31st of December 2015, what will be your value? What will be your carrying value? They are asking. बराबर है। Now what will be your carrying value? Your carrying value would be 16,000 divided लेस by 8 into डिप्रिसिएशन। 3। ये होगा तेरा डेप्रीसिएशन, बराबर। What happened? उसने छोड़ क्यों दिया? उसको नहीं आएगा समझ में। एक मिनट यहाँ से। तो
अभी रिकवरेबल अमाउंट इस डेट पे हो गया 40,000 का, बराबर है। योर कैरिंग वैल्यू एट दिस डेट is 10,000, your recoverable amount at this date is 40,000। अभी मार्केट में वैल्यू है 40,000 का, कैरिंग वैल्यू है वो 10,000 का। तो अगर तो अभी इम्पेयरमेंट तो ये तो नहीं होगा, बराबर। हाँ अभी तो, लेकिन अभी मतलब कैरिंग वैल्यू इज लो देन योर रिकवरेबल, तो हाँ हाँ, इम्पेयरमेंट लॉस तो होगा ही नहीं, बट कोई बात नहीं। डेप्रिसिएशन का वी विल शो, राइट? डेप्रिसिएशन का वी विल शो, यस परफेक्ट। डेप्रिसिएशन का वी हैव टू शो। अभी वो डेप्रिसिएशन का हमने वो कैसे शो किया है। एसेट का हिस्टोरिकल कॉस्ट 30,000, हिस्टोरिकल कॉस्ट डेप्रिसिएशन अप टू 31st of December 15। अभी हाउ दे आर डूइंग इट इज कि वो लोग कैसा मतलब बताना चाहते हैं। एक मिनट ना, इम्पेयरमेंट कितने का हुआ था पहले ये वो चेक करने दे। इम्पेयरमेंट लॉस 8,000 का हुआ था ना। तो वी विल डू लाइक दिस ओनली कि अगर तेरा इम्पेयरमेंट 8,000 का हुआ है, बराबर है, तो तूने 8,000 के ऊपर 3 साल का डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया रहेगा। तो 8,000 × 3/8, तो यू हैव नॉट शोन 3,000 का डेप्रिसिएशन, बराबर। 3,000 कैसे? दिखाता हूँ, बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, फिर से बता। 31st of December 15 को ये सारी चीजें हो गई। तेरा रिकवरेबल अमाउंट 40,000 बिकेम योर न्यू कैरिंग अमाउंट, बराबर है। हाँ ठीक है। अभी जब तेरा सबसे पहले एसेट था 30,000 का, उसके ऊपर तूने हर साल डेप्रिसिएशन लगाया 3,000 का, बराबर। यस। ईयर 1 एंड, अभी 3,000, फिर आया ईयर 2 एंड। जब ईयर 2 एंड आया तो उस तेरा एस का वैल्यू था 24,000। इधर तेरा हो गया 16,000 का तेरा रिकवरेबल अमाउंट। तो इधर तूने किया था इम्पेयरमेंट, बराबर है। यू मेड अ इम्पेयरमेंट ऑफ हाँ 8,000। So now further whatever ये depreciation you charged, whatever depreciation you charged it according to 16,000 only, बराबर ना। हाँ। इसमें कोई डाउट नहीं है ना तेरे को कि अभी हमने 24 पे क्यों नहीं नहीं। किया, 8,000 पे क्यों हाँ नहीं ना। ये सही है। रिकवरेबल अमाउंट अगर हमने बराबर। 16,000 पे चार्ज किया है, अगर हमने 16,000 पे हमारा डिप्रिसिएशन चार्ज किया है, और यहाँ पे देख, यहाँ पे हमारा 10 साल थे हमारे पास टोटल। ईयर 1 खत्म हो गया, ईयर 2 खत्म हो गया, तो यहाँ पे अभी हमारे पास बचे 8 साल। तो 16,000 डिवाइड बाय आठ हाँ साल सिक्सटीन तो तूने डिवाइड बाई डिप्रिसिएशन चार्ज 8। किया 2,000 का। 2,000। तूने 2,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, 60। 14 बचा। 14 बचा। नाउ यू डिड द सेम थिंग ईयर ऑल्सो, ईयर 4 एंड, ईयर 5 एंड। डेप्रिसिएशन 2,000, बराबर ना, दो दो हजार का ही आएगा डेप्रिसिएशन, हम्म। है ना। इसमें कोई डाउट है कि 2,000 का क्यों आएगा वगैरह, बिंदास, जैसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं नहीं ये बराबर है। है ना। नहीं ठीक है ये ना। इतना बराबर। तो बेसिकली तूने हर साल इसके बाद दो दो हजार का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ईयर 5 पे तेरे को पता चला ओ शिट यार, तेरी एक्चुअली रिकवरेबल अमाउंट 40,000 की थी। अभी जब तेरे को पता चला कि तेरी रिकवरेबल अमाउंट 40,000 की थी, तो तूने ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम तूने कुछ तो अमाउंट डेप्रिसिएशन में कम किया हुआ है। तो तूने कितने का कम है। अमाउंट कम किया हुआ है। तू पहले 3,000 चार्ज करती थी, अब तू 2,000 चार्ज करती है। तो तूने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1,000 का डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया है। तो तूने कम कितना हाँ चार्ज किया है। तूने कम चार्ज किया है यहाँ पे 1,000, 3,000। यहाँ पे 1,000, सॉरी, यहाँ पे 1,000,
और यहाँ पे 1000, तो योर टोटल इज 3000। ठीक है। अब मैंने इस चीज को शॉर्टकट में कैसे निकाला? हमने इम्पेयरमेंट लॉस इनकर किया 8000 का, बराबर। हाँ। मतलब एक मिनट, हमारा सबसे पहले वैल्यू था 24,000, जिसके ऊपर हमें एक्चुअली डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था। फिर हमको मिला रिकवरेबल अमाउंट 16,000 का, और हमें मिला 8000 का हमारा इम्पेयरमेंट लॉस। हम लोग रिकवरेबल अमाउंट पे डिप्रिसिएशन चार्ज आराम से किए जा रहे थे। हम लोग ने कैरिंग अमाउंट पे 3-3 हजार का डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे। हमने रिकवरेबल अमाउंट पे 2-2 हजार का डिप्रिसिएशन हम लोग आराम से चार्ज कर रहे थे। लेकिन हमने इम्पेयरमेंट लॉस के ऊपर कोई डिप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया। अगर हमने इम्पेयरमेंट लॉस के ऊपर कोई डिप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया, तो वो अभी हमको करना पड़ेगा। तो हमने कितने साल बीच में से स्किप किए? 12 से 13, 13 से 14 और 14 से 15। तो हमने 3 साल स्किप ठीक। किए, जबकि बचे थे 8 साल। तो आया डायरेक्टली मेरे को 3000 का डिप्रिसिएशन। ओ। तो दिस इज रिवर्सल। रिवर्सल अच्छा। थोड़ा रेयर, रिवर्सल एफआर में बहुत रेयरली आता है, लेकिन अगर आएगा तो एमसीक्यूज में आएगा। ठीक है। ओके। ओके। तो ये, हाँ, तो रिवर्सल इज अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट विच इज वेरी लिटिल कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ठीक है ना? लाइक अभी तेरे को शायद थोड़ा सा नहीं समझ रहेगा जैसे मैंने एक्सप्लेन किया रहेगा तब, लेकिन अगर जब एग्जाम किट सॉल्व करेंगे ना, तो एग्जाम किट सॉल्व करते टाइम यू विल गेट अ बेटर हैंग कि अगर उसमें आ गया रिवर्सल इम्पेयरमेंट का तो। ठीक है। अभी फिर इसमें हम्म ये जो सम किया ना हम लोग ने अभी उसमें इम्पेयरमेंट लॉस के बाद उन लोगों ने देख आगे भी किया है 30,000 लेस 15,000। हम्म ये हम्म, क्या हम्म, किया मतलब ये हाँ वही किया जो हमने किया हाँ हाँ हाँ, they have done the same thing. So बस what they have done, वैल्यू वैल्यू अलग नहीं है क्या? नहीं नहीं, see, हाँ हाँ, I'll tell you, see what they have done. Asset historical cost on 1st of January 11। तो सर हमको ऐसा बोलते थे कि अगर तुमको रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट हुआ है, तो ऐसा इमेजिन करो कि बीच में कोई इम्पेयरमेंट था ही नहीं। तो इन्होंने वैसे सॉल्व किया है स्टडी टेक्स्ट में कि तुम्हारा हिस्टोरिकल कॉस्ट एज एट 1st of January 11, यानी कि ईयर के बिगिनिंग में 30,000 का वैल्यू था। अगर तुम लोग बीच में इम्पेयरमेंट करते ही नहीं, तो तुम लोग 15,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करते। अगर तुम लोग 15,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करते, बराबर है, तुम लोग 15,000 का तुम लोग हम्म। डेप्रिसिएशन चार्ज करते, तो तुमको तुम्हारा कैरिंग वैल्यू मिलता 15,000। लेकिन अभी तुमको तुम्हारा कैरिंग वैल्यू मिला कितना है, ये देख, ईयर 5 के एंड में अपने को अपना कैरिंग अमाउंट मिला कितना है? 10,000। तुमको अभी मिला है कैरिंग अमाउंट 10,000। अगर तुम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करी, अगर तुम लोग इम्पेयरमेंट बीच का चार्ज ही नहीं करते, तुमको मिलता 15,000। तो व्हाट इज द रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस? इट्स ओनली 5,000। हमने क्या किया? हमने हाँ। डिप्रिसिएशन 3,000 का उसमें एड बैक किया। तो अगर हमें इम्पेयरमेंट लॉस हुआ था 8,000 का, डेप्रिसिएशन का वो रिवर्सल हुआ है 3,000 का, तो हमें 5,000 का इम्पेयरमेंट लॉस, ऐसा ऐसा मैंने फाइंड आउट किया। बट हाँ, दिस इज ऑल्सो सेम थिंग, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस 5,000। अच्छा। ठीक है ना? फिर आता है सीजीयू, कैश जनरेटिंग यूनिट। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सीजीयू। इज द डेफिनेशन ऑफ सीजीयू कि CGU is the smallest identifiable group of assets that generate cash flows that are largely independent of the cash flows from other assets. This definition is the most important definition of CGU. ये SBR में आता ही आता है, ऐसा वाला हमारा क्वेश्चन था। Again, impairment calculation, same shit. This is also the same shit that you have to do. Carrying amount of CGU higher than the recoverable amount, then calculate impairment. इधर तो मैं कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, इधर मैं तेरे को सीधा सीधा सम पे लेके जाऊंगा। उसके बाद मैं तेरे को खाली सिर्फ एक हाँ। चीज बताऊंगा कि जब भी इम्पेयरमेंट होती है, कंपनी की सबसे पहले इज्जत जाती है। इज्जत मतलब गुडविल, बराबर। हाँ। तो जब भी इम्पेयरमेंट होगा, सबसे पहले वी हैव टू रिमूव
सबसे पहले थिंग दैट वी हैव टू रिमूव इज द गुडविल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है ना। ओके, इसके लिए गुडविल को पहले इम्पेयर करते हैं और फिर बाकी हाँ सबको बाद में। हाँ, क्योंकि ऐसा मतलब ऐसा इसको याद रखने का कि कभी जब भी इम्पेयरमेंट होता है सबसे पहले कंपनी की इज्जत जाती है। इज्जत इन इंग्लिश मीन्स गुडविल। अरे नाइस। एक्चुअली, एक्चुअली इज्जत मतलब मीन्स गुडविल, हाँ सच में। हाँ, अरे मैं ऐसा किधर मांगूंगी, सच्ची, बट सच्ची तू ऐसा। द वे टू रिमेम्बर इज गुड। मेरे को जरा एक एक से बताते ही जाना। देन टेक्नोलॉजी, ब्रांड, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड और ब्रांड, बिल्डिंग अलग अलग है क्या? लैंड, हाँ अलग अलग है। ओके, वैल्यूज बता। ओके वैल्यूज बताती हूँ। गुडविल 20 20। हाँ, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड, मैंने मैंने बहुत जोर से भगा यहाँ पे। हाँ हाँ, कैरिंग अमाउंट इज 20। हाँ, 25, 5, 10, 10। 50, 30 एंड 40। वो नेट करंट ऐसे, हाँ वो सॉरी, वो नेट एसेट। हाँ, वन मोर थिंग, करंट एसेट कभी भी एम्पेयर नहीं होते, ठीक है। दिस इज द ओके। दिस इज लाइक द मोस्ट शिटियस्ट थिंग, जो गलती एसबीआर में हम लोग ने एक बार की थी। मॉक पेपर में ये आया था सम, कि हम लोग को करंट एसेट एसेट दिया गया था, एंड लाइक अ फकिंग इडियट आई डिड इम्पेयरमेंट। और सर ने जो डांट लगाई थी ना मेरे को, कि भाई मतलब नहीं होता इम्पेयरमेंट बेसिकली। दिस इज लाइक द बिगेस्ट रूल, क्योंकि करंट एसेट 12 मंथ्स के अंदर खत्म होने ही वाले हैं ना। ऐसा ऐसी चीज है वो, नॉन करंट एसेट। हाँ तो उसको हाँ इम्पेयर होगा ही नहीं। हाँ, ठीक है। अनदर थिंग विच इज लाइक अ वेरी साइलेंट थिंग हियर, आई विल टेल यू दैट लेटर। अभी के लिए तू क्वेश्चन पढ़ना खाली। Uh, this is the carrying amount for all the items. Then there is the recoverable value of the unit is estimated at $85 million. The technology is worthless following its complete failure. The other net assets includes inventory and receivables. It is considered that the carrying amount of other net assets is reasonable representation of the net realizable value. हम्म, अभी लेकिन तूने यहाँ से नहीं पढ़ा, देख। सेब कंपनी runs a Yeah. unit that SAP suffers a company massive runs. drop in income due to failure in its ये technology. So this is an indicator of impairment, ठीक है ना। इतना खाली याद रखना अभी के लिए। अभी देख, ओके। तेरा अगर रिकवरेबल, बोल बोल। हाँ, अगर यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि फेलियर ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, लेकिन अभी जैसे इसमें इन लोग ने नीचे मेंशन किया है टेक्नोलॉजी इज वर्थलेस वगैरह, तो इसको हम्म पूरा का पूरा हम लोग वो टेक्नोलॉजी का जो भी 5 मिलियन दिया हुआ है वो सारा हम लोग इम्पेयर कर देंगे। हम्म। लेकिन अगर ऐसा पक्का है ना कि उन लोग नीचे ऐसा मेंशन करेंगे, नहीं हाँ तो हाँ, कभी कभी क्या होगा कि वो नीचे ऊपर ही मेंशन करेंगे ही दिया है करेंगे ऐसा वो लोग। छोटू सा एक लाइन और नहीं नहीं नहीं, बस वो लोग बोल मेंशन दिए। करेंगे ही करेंगे। ओके। ठीक है, तो तेरा कैरिंग अमाउंट था 55 का, तो 110%, अगर तेरा रिकवरेबल अमाउंट 85 है, तो तेरा इम्पेयरमेंट हुआ है 70 का, बराबर है। हाँ अब उस राइट। 70 में से मैं तो क्या बता रहा था कि सबसे पहले निकलता है वो गुडविल निकलता है, बराबर है। हाँ, इसका जीरो। अब सबसे पहले गुडविल निकलता है, तो अपन ने सबसे पहले गुडविल को निकाल दिया। टेक्नोलॉजी हैज बिकम वर्थलेस उन्होंने बोला है, तो अपन ने टेक्नोलॉजी का 5 को भी निकाल दिया, तो वो भी जीरो हो गया, बराबर। राइट। अब बाकी क्या बचा, देख। और इन्होंने क्या नेट बोला है। एसेट्स को भी। हम्म, अभी देख, अदर नेट एसेट्स इंक्लूड इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स, मतलब ये करंट एसेट्स है, बिकॉज इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स आर ऑलवेज करंट एसेट्स।
इन्होंने लेकिन उसके आगे भी तेरे को एक हिंट दी है, मतलब सीधा बोल ही दी है, it is considered that the carrying amount of the net assets is reasonable representation of the net realizable value। तो ये जो कैरिंग अमाउंट है, ये हमने बराबर सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये 40 भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। बराबर है। ओके ओके। तो अब तेरे पास बचा कितना? अभी बचा ये ब्रांड लैंड और बिल्डिंग का। बराबर है। तो अभी तेरे कितना ये है वो? 70 में हाँ, से, अभी तेरे ये 70 इम्पेयरमेंट में से 90 20 है। माइनस किया और 5 माइनस किया, तो बचा 45। अब तेरे को इस 45 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। Now, how will you distribute this 45? You will distribute this in the proportion of their carrying amount, 10, 50 and 30। तो इसका लेट से हमने ले लिया। अभी मैं इसको ना को एकदम बेस्ट ऐसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ। ये है तेरा इम्पेयरमेंट, ये है तेरा कैरिंग वैल्यू। अरे तो कैरिंग 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 वैल्यू, इसका सम कितना है? 90। इसका सम है 90, तेरे इंपेयरमेंट का सम है 45। तो नाउ यू विल जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर देख, अगर 90 टोटल इंपेयरमेंट के टाइम पे 45, सॉरी, अगर 90 के कैरिंग वैल्यू पे 45 का इंपेयरमेंट लग रहा है, तो फिर 10 के इंपेयरमेंट पे कितने का लगेगा, या 10 के कैरिंग वैल्यू पे कितने का लगेगा? अगेन 50 इंटू 45 डिवाइड बाय 90, 30 इंटू 45 डिवाइड बाय 90। तो दैट्स हाउ वी डू इट। ठीक है। ओके। कोई डाउट है यहाँ तक? बिंदास पूछ। नहीं, ये क्लियर है। ठीक है ना? ये क्लियर था। तो ये देखिए सब एकदम, ये तो एक्चुअली सिंपल है वैसे देखने जाएगी तो कुछ है नहीं इसमें। हाँ, इसका एक्चुअली वो जो टेबल वाइज बनाना है वो ज्यादा इजी है। हम्म। हम्म। ठीक है ना? लास्ट थिंग, तो ये सारे सम्स हो गए इस चैप्टर के। मतलब ये लास्ट चीज है TYU 4। दिस इज जस्ट ये क्या बोलते हैं, पूरा फुल फ्लेज सम है। फुल फ्लेज सम टू टू ये कर लेगी? या सर 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 हाँ तुम लोग को हाँ। बोला है फुल फ्लेज सम सर ने करने के लिए? नहीं, सर ने ये करवाया था तो सर ने करवाया? ओके। आई हैव द सॉल्यूशन। हाँ। ओके। ठीक है, यू हैव द सॉल्यूशन ना, देन इट्स ओके। ठीक है। एक सेकेंड।